Good morning, students. Today I am here with a new topic, and the topic is tissue. This is our second chapter of biology section. ठीक है. So I think you all are aware that what are tissues. I think in previous classes you have well studied about the tissues. So once again I am telling you that what are the tissues. If you will observe that what are tissues. Tissues is a group of cells having similar structure and function. In plants and animals, groups of cells are called tissues which carry out a specific kind of function. Now, once again, I am going to explain it in very simple way. Means tissue, what is tissue? Tissue is a group of cells. Tissue क्या है? कई सारी cells इकट्ठा होकर के ग्रुप बना लेती हैं, and this group of cells is called as tissue. And all the cells which are present in this group, they are similar in structure, they are similar in origin, similar in function. Means सेल्स में इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में कई सारी सेल्स हैं और ये सेल्स स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही सिमिलर हो. ठीक है, ऑरिजिन में भी सिमिलर हो सकती हैं. एंड एक चीज़ तो इनका सिमिलर होगा ही होगा हमेशा. एंड व्हाट इज दिस इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं. इन ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. अगर आप एनिमल टिश्यूज़ को देखते हैं, एनिमल टिश्यूज़ में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मस्कुलर टिश्यूज़ का. मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स के बने होते हैं, शायद आपने पढ़ा हुआ इन प्रीवियस क्लासेस. स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ठीक है. नाउ दीज आर ऑल्सो गिवन इन द फिगर हेयर ऑल्सो, यू कैन ऑब्जर्व देम. नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व, स्ट्रक्चर तो शायद सबका डिफरेंट दिख रहा है, बट इनका फंक्शन कॉमन है. दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. मीन्स दे आर अल्टीमेटली हेल्पिंग इन द मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. Similar to this, I am talking about plants. In plants, if you will observe, there is a vascular tissue. Now, what is the meaning of vascular tissue? I am going to tell you that. Vascular tissue is a tissue which helps in the conduction or transportation of things. ठीक है, ऐसा टिश्यू जो कंडक्शन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है चीज़ों की, उसे एक वास्कुलर टिश्यू बोला जाता है. नाउ जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जांपल होते हैं. नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व द फर्स्ट वन फिगर, जाइलम इज़ देयर. नाउ जाइलम में आप देखेंगे 4 अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं. जाइलम में जो जाइलम फाइबर है, जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकिट्स हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा. 4 अलग अलग सेल्स हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली इनका फंक्शन एक ही है कि वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं. सिमिलरली टू द इन केस ऑफ द फ्लोएम, फ्लोएम भी 4 अलग अलग सेल्स का बना हुआ है. फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन cells. All are structurally different, but they have same function. They are helping in the transportation of food. So from here we can conclude that what is tissue? Tissue is a group of cells, and the cells may be similar in structure, origin or function, and they specifically carry out a specific kind of function. Okay, this is tissue. Now in this chapter we have to discuss about plant tissues and animal tissues. So before starting the concept of plant as well as the animal tissues, I want to differentiate both of them initially. Now what is the difference between them? Animal tissues and plant tissues. I am talking about plant tissues initially. Plants do not move from place to place. Most of the cells are tissues. In plants provide mechanical support and strength. So most of the tissues consist of dead cells because they provide mechanical support and strength to the plant. तो पहला difference, if you will observe, plants स्टेशनरी होते हैं. ये अपनी एक ही मेन पोजीशन पे खड़े होते हैं. ये अपनी पोजीशन लगातार चेंज नहीं करते हैं. तो इसके लिए इन्हें एक ही जगह पे सीधे खड़े होने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर डेड इन नेचर. तो यानी कि ज़्यादातर टिश्यू या ज़्यादातर सेल्स जो प्लांट के होते हैं वो डेड टिश्यू या डेड सेल्स के बने हुए होते हैं. नाउ मेक अ कंपैरिजन. नाउ अब बात करें एनिमल सेल्स की. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन द प्लांट्स. एनिमल जो होते हैं ये लोकोमोटरी होते हैं, इधर से उधर फुदकते रहते हैं. इसके लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ज़्यादा एनर्जी डेड सेल्स तो मिलनी है नहीं. तो एनर्जी कहाँ मिलेगी? जब सेल में रेस्पिरेशन होगा तब एनर्जी मिलेगी. सो इन द केस ऑफ द एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज और द सेल्स आर लिविंग इन नेचर. सेकंड डिफरेंस, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन्स. सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यूज विच डू नॉट डिवाइड. अब देखिए प्लांट्स में अगर आप यू विल ऑब्जर्व, ग्रोथ जो होती है अनसर्टेन होती है. कुछ ही रीजन प्लांट्स के ग्रोथ करते हैं, जैसे रूट टिप हो गई, शूट टिप हो गया, यही रीजन तो आपके प्लांट्स के ग्रोथ करते हैं. ब्रांचेज हो गई, यही ग्रो करते हैं. तो यानी प्लांट्स में ग्रो मतलब आई मीन टू से दैट प्लांट्स को के टिश्यूज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि जो टिश्यूज़ लगातार सेल डिवीजन करेंगे और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
and which are not dividing are called as permanent tissues. ठीक है. While in case of the animals, the growth of animal is more uniform, so animals do not have separate dividing and non dividing cells or tissues. तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है यूनिफॉर्म होती है, सारे ऑर्गन सारे स्ट्रक्चर लगातार एक ही रेट से ग्रोथ करते हैं. तो ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होता है एनिमल्स में कि ये ग्रोइंग टिश्यू होगा, ये डिवाइडिंग टिश्यू होगा, ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होगा. ठीक है. बिकॉज ऑल बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स हैव सम सेल्स which have ability to divide again and again. So these are some differences between plants and animal tissues. Now I am coming to the very first one topic, and the topic is plant tissues. Now plant tissues are of mainly of two types. Plant tissues की बात करें तो plant tissues basically जो हैं जनरली दो तरह के होते हैं. Now what are these two tissues? Meristematic tissue and permanent tissues. Now what is the difference? This is the first point. हमें सबसे पहले यही जानना है कि यार प्लांट्स को दो कैटेगरी में जो बांटा गया, क्यों बांटा गया, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट. द फर्स्ट वन मेरिस्मेटिक टिश्यूज, एज आई मैंशनड अर्लियर ऑल्सो. ठीक है. मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज विच हैव डिवीजन, विच हैव एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन. मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जिसकी सेल्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लगातार डिवाइड कर सकें और नई सेल्स को फॉर्म कर सकें. क्लियर. नाउ on the other hand we have permanent tissues. Now what are permanent tissues? Permanent tissues are those tissues in which cells do not have capability to divide once again and to form new cells. यानी कि परमानेंट टिश्यूज सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर चुके हैं, खो चुके हैं, लूज़ कर चुके हैं. इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये दोबारा डिवाइड कर सकें. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मेरिस्मेटिक टिश्यू हैज़ द सेल्स which have the ability of cell division, while the permanent tissues do not divide and the cells can't be divided again and again. ठीक है. अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की. मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है लोकेशन के बेसिस पे तीन टाइप का हो सकता है: एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. अब बात करें सबसे पहले एपिकल की. इन डिटेल वी विल डिस्कस इट टुमारो, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस इट. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको प्लांट के एपिकल रीजन्स पे मिलेगा. नाउ एपिकल रीजन एज्यूम करो कहाँ कहाँ हो सकता है. प्लांट को एज्यूम करो अपने ब्रेन में. एक तो रूट टिप, एक शूट टिप. तो रूट टिप और शूट टिप जो लगातार बढ़ती, दिस इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दूसरा है इंटरकैलरी. नाउ इंटरकैलरी, अब आप एक एज्यूम करो प्लांट पे आप ध्यान दो, एक एक पॉइंट जहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, उसके ज़रा से ऊपर या नीचे दूसरा पॉइंट होगा जहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रही है. द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए ब्रांच इज अराइजिंग इट इज़ कॉल्ड एज नोड. तो दो नोड्स के बीच में जो प्लांट की लेंथ है, जो स्टेम है, उसको हम बोलेंगे इंटरनोड. ठीक है. अब देखो, जैसे प्लांट छोटा होता है तो इंटरनोड की डिस्टेंस भी छोटी होती है. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है इंटरनोड की डिस्टेंस भी बढ़ती है, यानी ये इंटरनोड भी बढ़ता चला जाता है ना, इसकी लेंथ भी बढ़ते चले जाती है. दिस इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ना तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ना व्हाट इज लेटरल? लेटरल मेरिस्टेमेटिक प्लांट की लेटरल साइड पे, गोलाई पे मिलेगा आपको. ये प्लांट की विड्थ या गिर्थ को बढ़ाएगा. विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई को बढ़ाएगा. ठीक है. नाउ द सेकंड टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. Now permanent tissue को if you will observe, it's not clearly mentioned here. Here you can observe there. Permanent tissues are basically of two types: simple permanent and complex. तो सिंपल परमानेंट मतलब वो टिश्यू जो सारी की सारी सेल सिमिलर टाइप की होंगी, सिंगल टाइप की सेल बिल्कुल सिमिलर होंगी एक दूसरे की, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया. और ऐसा टिश्यू परमानेंट टिश्यू जो अलग अलग टाइप की सेल्स का बना हुआ है, उसे बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. While the complex permanent tissue is made up of two types, is of two different types: xylem and phloem. ठीक है. We will discuss them in brief in the next video. Thank you.